so we will be covering current affairs class, right? And there are three sources: the Hindu, editorials, the Indian Express, and the Secure. From Secure, I've taken certain topics. So we'll start with GS1. So there were two news. First was that regarding the Savitribai Phule. I am sure you must have seen that Google Doodle. So we'll just have that to discuss. And another one is regarding the women's safety because of the molestation that happened in Bangalore. That created a lot of furore, and as well as the one which happened in Delhi and the continuing molestations. Okay? So first of all, we'll discuss about Savitribai Phule. So anyone knowing anything regarding her? Okay, besides that, like what? Okay, mainly she was a reformer, right? So we'll say that she was a social reformer. Okay, that includes both working for the education, like of the girls. So we have this gender angle in her contributions, as well as she worked against the marginalized section. So we have the caste, anti-caste, okay, and she worked with her husband only in the Satyashodhak Samaj. So we have that also. So you can actually write down. Do you want me to dictate or just discuss? Dictate? Okay. So write about Savitribai Phule. So basically, it's more of a mains question because you get contributions of certain personalities. It's a topic in GS paper 1. So Savitribai Phule per se is not important, and but 2-3 lines you must know that in case the question comes, you can always build your story around these things. Okay? Because Google dedicated doodle to it. Okay. So she was one of the India's first generation modern feminists. She was actually first, okay, sorry, right, done. She was one of the India's first generation modern feminists, right? And then she was the first female teacher of a girls' school. So that's also an achievement. And as far as with respect to gender goes, she also worked for the emancipation of the widows, like the child brides, who were abandoned because they were widowed at a very young age. So worked for the emancipation of those as well. And then emancipation of the lower castes or the marginalized people. And then you can write that along with her husband, she also contributed in the Satyashodhak Samaj, in the activities of the Satyashodhak Samaj, which was basically ending caste discrimination. Now, how has government honored her contributions is by opening a university in Maharashtra by her name in Pune specifically. Then we have a stamp in her honor, and recently Google Doodle also celebrated her achievements by dedicating. Google also celebrated her achievements. These are the like 3 things you can say that how government has actually honored her achievements. So basically, any personality come, you can always write these points. That there's a stamp in so and so on, because mostly सबके नाम पे stamp है जितने भी important personalities हैं, ठीक है? और कुछ और पता हो तो award भी, हाँ, award कह सकते हो, या फिर जैसे जो कुछ personalities हैं जिनको जैसे भारत रत्न मिला हुआ है ना, उनका वो लिख सकते हो. तो इस तरह से mostly जैसे कुछ schemes होती हैं उनके नाम पे वो लिख सकते हो, तो मतलब contribution वगैरह आप लिख सकते हो इनमें, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल आया था लास्ट वीक इंस्टेंट जस्टिस के ऊपर. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वुमेन सेफ्टी. तो एक लास्ट वीक एक एडिटोरियल आया था, पढ़ा था किसी ने? आईपीएस लेडी ने लिखा था रिगार्डिंग इंस्टेंट जस्टिस, दैट व्हाई वी शुड प्रेफर इंस्टेंट जस्टिस इन केसेस ऑफ molestation and not that the whole litigation process, because it takes very long and the molesters they go scot free.
there was this article, right? So basically, I'm taking just some pointers from that article. So that article basically dealt with instant justice. Why instant justice should be the thing in these days. So, so they had given some positives of instant justice. So the positives of instant justice could be actually be equated with the fact that why we are failing our women, like what are the loopholes, है ना? So what according to you are loopholes that we are not able to ensure women's safety after so many years? Any pointers? What? Mentality, yes, definitely. Of whom? Like you can say mentality of police, mentality of bystanders, mentality of victims parents. So we can have so many mentalities, no? So just elaborate on it. Exactly. So we can also say that, है ना, that the blame game is there. And we can also say that the victims, the women are actually shy to come out because of the fear that they think that their parents will end their education. No one will actually listen to their voice, rather than they'll do whatever they want to. So some pointers that why lack of this, why we are not able to provide justice to the women after so many years. So first of all, you want to write these points as well. Like it was an article. Okay, I'll just read. First point is lack of complaints by victims. Because of the fear of the molesters. Concerns that parents may stop their education. Are you getting what I'm saying? No? Okay. So we are discussing current affairs, and we have just done with one topic, starting with GS1, mains ke according we are discussing. We have just discussed the contributions of Savitri Bai Phule. Basically empowerment only, both of the women as well as of the lower castes. Okay? And now we are doing women's safety because of the molestation that happened in Bangalore. Right? So yeah, due to the fear of the molesters, concerns that parents may stop their education, embarrassment over approaching the police, and not knowing whom to talk with. Then the other point is trials of such cases takes years. Then witnesses, they don't come forward. Accused can buy or influence witnesses. Molesters could eventually be acquitted. तो ये पॉइंट रिपीट करना है, ठीक है? तो ये तो हो गई कि क्या इश्यूज है आज भी. तो एक इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी इंश्योर वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल पॉइंट्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड? Like both in ways that the institutions should be made stronger, as well as like the bystanders apathy shouldn't be there, or the use of technology. So we can discuss certain points. Let's say we can bring some police reforms, like sensitization of the police, है ना, so that they can listen to the complaints of the women, है ना. And secondly, you can also say that you can have a woman police officer available all the time, and the policing can increase, so that these instances of eve teasing, at least they will act as a deterrent. These are like some of the police reforms you can carry out, right? Some changes in the policing. And then you can use technology as well for ensuring women's safety. How can technology help in ensuring women's safety? Yeah, precisely. CCTV.
CCTV. Women apps could be there, okay, which are connected to some known, so that in case of an emergency, है ना? And what else? How else technology can ensure? Okay, how? थ्रेटन कर सकते हैं बिल्कुल. तो हाँ, वो भी कह सकते हैं कि आप जो विक्टिम्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, है ना, ताकि उनको इंश्योर करो कि वो मतलब डरे ना, है ना. तो और अच्छा चलो, एक हमने डिस्कस किया कि पुलिस वाले में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और कोई पॉइंट आ रहा है जो आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी में हेल्प करेगा? स्विज नाइफ वगैरह, पेपर स्प्रे वगैरह, उससे इम्पावर कर रहे हो. एग्जैक्टली exactly. कि आप वुमेन को भी थोड़ा इम्पावर करो, एक तो अवेयरनेस जनरेट करो कि आपके साथ गलत हो रहा है, एंड इन केस यू विल रेज अ वॉइस देन यू विल गेट द जस्टिस डेफिनेटली. सो यू हैव टू create awareness. You can use NGOs for these purposes, you can use media for these purposes, as well as the other point is that you can ensure, you can teach them some defense techniques, right, like whatever he said. And the other thing is that you should actually ensure that the perpetrators of such crimes are brought to book, they are punished, okay. So that for that you can actually do some changes in the judiciary also, right. And then other thing would be that you have heard about National Commission for Women, okay. So we can actually empower that commission also, so they can also bring some positive changes. This is how you can ensure women's safety. There are a number of points, whatever comes to your mind you can just write it. I'm just discussing it, I don't think. Yes, you can also, you can actually, you can include such moral education in the curriculum of the schools also, so that both men and women, they are sensitized to such cause. So you can have so many points, right? So do you want to write? You can actually jot down the broader headings and fill underneath by yourself. Bystanders apathy. Like bystanders are the people, like wherever the incident has occurred, people around, like you have seen that Bangalore wala video of the molestation. Okay, no one is paying any heed to when the woman is being molested in a public place. So bystanders apathy, we say, has increased. So no one actually gives any any attention to the victims or even the people who are lying down. They just met with an accident and they are lying down. No one, everyone is in a rush. No one really cares about them. That is known as bystanders apathy. Apathy is what? Apathy is that you don't really care about what is happening around you. Yeah, you can say that. You don't actually care. You just go ahead with whatever you were continuing. You don't actually care. So that has actually increased in the urban areas, especially in metros. Like when you go to some, let's say, rural area or some cities which are not that developed, so you will actually find people, if such incidents take place, so you'll find people around helping the girl, है ना? So that that actually acts as a deterrent. Okay, but in metro cities, like for instance in Bangalore, this is a very common phenomenon, bystanders apathy. So you can actually write in the reasons that why women's safety is not being ensured because of the bystanders apathy. Do you want me to write the spelling? Legible? So these are the two topics of paper 1, right? Do you want to write the pointers? No? Then with respect to GS2, there were two news which were very important last week, which were, one was that model code of conduct has been imposed in 5 states. So we'll discuss a bit about model code of conduct. And the another news was this interpretation of Article 1233 of RPA. So let's just discuss model code of conduct first.
Model Code of Conduct is a set of guidelines issued by the Election Commission to regulate political parties and candidates It is a set of guidelines issued by the Election Commission to regulate political parties and candidates prior to elections to ensure free and fair elections. This is in keeping with Article 324 of the Constitution. Which is what? Article 324 of Constitution is what? Free देना है इस बार सबने? नहीं? किसी ने भी नहीं देना? आपने देना है? क्या है आर्टिकल 324? इलेक्शन कमीशन, ये सारे रूल्स पावर्स उसमें डिफाइंड है. Not necessarily, but like it is a very important constitutional body, election commission, so definitely इसका तो आना ही चाहिए. जैसे यूपीएससी के हो गए, इसके हो गए, कैग का हो गया, फाइनेंशियल कमीशन का हो गया, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, इसका तो आना चाहिए. Yeah. So with time, eventually you'll learn all of those. It's not a problem. Like you'll read it, and you'll remember them. It's just a conscious effort for the first few months, maybe. Yes, but afterwards you learn them eventually, and learn only the important ones. So you'll come to know that which ones are the important ones and which one aren't. So are you writing free this year? Okay, so you are the only one who is writing free this year. Aman, you are also writing. So you were knowing Article 324. No? Like 6 months, less than 6 months left, so just study hard for the pre in case you are writing. Okay. So this is in keeping with Article 324 of the Constitution, which gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament. Okay. The power to supervise elections to the Parliament and state legislatures. So for state legislatures also we have Election Commission. Then what is State Election Commission for? Try, guess. What is State Election Commission? What are State Election Commissions for? Like for state legislatures? Definitely for panchayats. So when does the EC impose Model Code of Conduct? When the elections are announced. So it is there till the date the results are announced. From the date of the elections announced till it's operational there. So what are the reasons you think that we have to impose Model Code of Conduct? What? How do we ensure free and fair elections? That's the basic objective, but there are going to be certain... Okay, how? Precisely. But then that is under the legislations, right? So MCC basically, can we say that it deters the ministers or the parties in power to use the state resources for, furthering their own cause? So main reason is that, so that the ministers, they don't use official machinery, official resources for their own campaigning,
or they don't actually announce very, like you can say, certain populist measures which can actually sway the voters, you know? Not giving undue advantage to the party in power. Okay, so we can say that. So we can write down certain points. It actually helps, MCC helps to prevent the misuse of official machinery by parties in power. It also helps to check electoral offences, malpractices, and corruption. It also helps to check electoral offences, malpractices, and corruption during elections. Also ensures that the party in power doesn't use public money official machinery or personnel in electioneering. Election, then double E, what? Repeat. Personnel, like the people, like the officials. They are not being used by the parties in power to further their own prospects. Okay. N-E-L, L-E-E-L. Official machinery, public money, and official personnel to further their interests, or in electioneering. So why was it a news? Matlab, there were elections announced, and there was this another news which was related to MCC last week. Yeah, that's the article 123. वो तो वही न्यूज़ थी ना कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं तो वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके साथ कुछ बजट से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही थी. हाँ, वो कह रहे थे कि बजट आप मत करो, मतलब द ऑपोजिशन पार्टीज आर सेइंग कि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स दे देंगे, स्पेशली या उन स्टेट्स को ज़्यादा फंड्स दे देंगे जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं. तो एक तो वो वाला न्यूज़ आर्टिकल था. अच्छा, तो अभी एक बहुत ही ट्रिवियल इशू है, मतलब वी सी विद रिस्पेक्ट टू मेंस, इसी में मतलब कॉन्टेक्स्ट में है, तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस जस्ट दैट कि वो कह रहे थे कि आप मत करो बजट. तो उसका रीज़न क्या दे रहे थे वो, कि वोटर्स को आप स्वे कर दोगे बाय द पॉपुलर schemes and all that. But then the EC was like कि मतलब इतने, because we have that kind of you can say naive or gullible voters, we don't have those. मतलब बहुत ही आप कह लो कि उनको भी उनका भी अपना दिमाग है, वो भी सोचते हैं, इतने गलेबल तो नहीं है कि कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो मान जाएंगे. तो मतलब ये दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं, बजट को करो या ना करो. ठीक है. और एक एमसीसी पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एमसीसी को क्या स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. मतलब ये मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्स्ड. ठीक है, कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है एमसीसी को, तो इसीलिए एक तरह से टीथलेस है ये जो भी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो इसीलिए इसको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं कि पार्टीज या कैंडिडेट्स खुद से ही फॉलो करें इसे, बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो लीगल बैकिंग, तो व्हाई वुड एनीवन फॉलो इट, राइट. कुछ है ही नहीं, आंसरेबिलिटी नहीं है. तो इसलिए क्वेश्चन आता है, शुड एमसीसी be backed by some statutory law? So we have that question. So what do you think? Yes and no? Yes, yes में क्या points आएंगे?
वही बात हो गई ना कि थोड़ी स्टैट्यूटरी बैकिंग हो जाएगी तो थोड़ी उसको टीथ मिल जाएंगे एमसीसी को, है ना, तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, थोड़े क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गए कि होना चाहिए स्टैट्यूटरी बैकिंग, और नहीं होना चाहिए का क्या है? बट आपको दोनों एस्पेक्ट्स बतानी होती हैं। जब आप आंसर लिख रहे हो यू हैव टू राइट बोथ एस्पेक्ट्स। एक तो यही बोल सकते हैं कि लिटिगेशन बढ़ जाएगा, मतलब कोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में इतने केसेस चल रहे हैं, है ना, तो और एक लॉ आ जाएगा तो और उसके इंटरप्रिटेशंस आएंगी तो लिटिगेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो जो टाइम लगेगा इन सबको करने में, है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कभी कभी तो वो पर्पस ही डिफीट कर देगा। लेट्स से इलेक्शंस आ जाए, कोर्ट में केस चल रहा है कितने सालों से, तो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जो अगर कुछ लेट्स से अगर एमसीसी में कुछ वायलेशन भी होता है, जैसे लेट्स से कोई कैंडिडेट या कोई मिनिस्टर हेटफुल स्पीच दे रहा है या कुछ भी और कर रहा है, तो वी हैव ऑलरेडी लेजिस्लेशंस फॉर दैट, ठीक है। आईपीसी में और उसमें अपना आरपीए में वी हैव लेजिस्लेशंस फॉर दैट, so it will only be another legislation. So what should be the way forward if you get this kind of a question? क्योंकि हमें मेंस के आंसर में ना जो पूछा है प्रोस लिखने होते हैं, कॉन्स लिखने होते हैं, और अगर कॉन्स नहीं भी पूछे या अदर साइड नहीं भी पूछी, आप एक दो पॉइंट्स हमेशा लिख कर ही आओगे, राइट। और उसके बाद कंक्लूड करने के लिए हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा वे फॉरवर्ड? इसमें आप ये कह सकते हो कि टिल द टाइम इट हैज नॉट बीन इट डजंट हैव अ लीगल बैकिंग, तो इट शुड बी अपॉन द कैंडिडेट्स एंड द पार्टीज to actually do it voluntarily. Ethical conduct, moral conduct, you can say that, right? हाँ, वो तो पर अभी भी है ना। हाँ, अभी से ज्यादा आप कह सकते हो, या डेफिनेटली यू कैन इवन कंक्लूड, you can also say EC should also do its work more diligently. Already is doing, but a little more effort might serve the purpose. Okay, and then we have another article of political finance. किसी ने पढ़ा था ये? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो ना? थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। अच्छा, एक था कि पॉलिटिकल फाइनेंस में जैसे आप जब मोदी gave this 31st December वाला speech, so everyone was contemplating that he will actually talk about how to curb corruption as far as political finance goes. Okay, but then there was no talk of it. So there was this article that came the other day that how can you tackle the loopholes in political finance, because a lot of money is laundered, you know, a lot of corruption happens there, a lot of like you don't know where the source of the money is. So that money is basically black money, which the parties use. So how can we tackle such political finance? Any point? Precisely, कि कैश ट्रांजैक्शन ही खत्म कर दो, डिजिटल कर लो सब कुछ, है ना। और एक पॉइंट होता है कि 20,000 से अगर कम अमाउंट आप दे रहे हो पार्टीज को, तो उनको बताना नहीं होता सोर्स कौन सा होता है। तो वो पार्टीज क्या करती हैं, हर एक जो भी है जितना मर्जी अमाउंट हो उसको 20,000 से कम करके डिपॉजिट करते हैं ताकि उनको बताना ना पड़े, ठीक है। तो एक तो ये लूप होल है, इसको हटाओ, इस प्रोविजन को हटाओ कि 20,000 से कम वाले हर एक जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है शुड बी मेड पब्लिक, शुड बी लाइक टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, राइट। एंड देन द अदर पॉइंट इज जो भी पार्टी फाइनेंसेस है उनकी स्क्रूटनी एक थर्ड पार्टी ऑडिटर करे, मतलब बाहर से आके कोई उनको ऑडिट करे, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो अगर ईसी को लगता है कि ये पार्टी एक शेल पार्टी है, इट इज ओनली यूज्ड टू लाउंडर मनी, और मतलब ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या उसमें उसका कोई रोल ही नहीं है, जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, ताकि एक चैनल बनाया हुआ है ब्लैक मनी के लिए, तो फिर मतलब ईसी को ज्यादा पार होनी चाहिए कि वो डी रजिस्टर कर सके इन पार्टीज को, ठीक है। और उसके बाद है कि जो कैंडिडेट्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अपने बारे में बताते हैं या अपने असेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते, उनको भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहोगे? सो द टॉपिक इज मेजर्स विच शुड बी टेकन टू टैकल पॉलिटिकल फाइनेंस। पहला है एंड कैश डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज,
and encourage digital transactions. Digital transactions. Political parties should disclose the sources of contribution below 20,000 as well. 20,000 वाला ये पॉइंट है कि अब जैसे लेट्स से आपने मेरी पार्टी को कोई डोनेशन दी, तो अब आप अगर आप 20,000 से ज़्यादा दे रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपने दी है, आपका पूरे सोर्सेज वगैरह, मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से मिले वो पैसे, मुझे अपनी साइट पे डालना पड़ेगा या गवर्नमेंट में जो भी है फाइनेंसेस में उसमें लिखना पड़ेगा कि मुझे मतलब 20,000 या 21,000 आपसे आए हैं। बट अगर यही आप मुझे लेट्स से 19,000 दे रहे हो तो मुझे कहीं भी उसका अकाउंट लिखने, उसको अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रूल है ये, ठीक है, आरपीए में है इसे। तो अब क्या होगा कि सब लोग यही कोशिश करेंगे, सब पार्टीज के आप जो भी डोनेशंस उनको मिले वो 20,000 से कम मिले, क्योंकि फिर उनको कहीं भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पैसे आते जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि जितना मर्जी बड़ा अमाउंट हो वो 20,000 के कम में लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोविजन है यही खत्म हो गया कि 20,000 चाहे जितना, चाहे 1,000 रुपया भी है, चाहे 2,000 भी है, आपको सोर्स बताना है, तो फिर कितनी ज़्यादा पता चल जाएगा ना कि मनी का सोर्स कहाँ पर है, क्या वो मनी का सोर्स कुछ लेट्स से गलत कामों से आया, इलीगल है या ब्लैक मनी है, तो उस तरह से आपको सोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रोविजन ये भी आ रहा था, ये रिकमेंडेशन थी कि इस अमाउंट को 2,000 कर दो, बट देन अगेन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना, फिर पार्टीज 1900 में लेना शुरू कर देंगी। तो वो कह रहे हैं कि चाहे जितनी मर्जी छोटी अमाउंट हो, यू हैव टू एक्चुअली टेल द सोर्स ऑफ दैट फाइनेंस, ठीक है। नहीं, अभी तक तो नहीं किया, तभी रिकमेंडेशन है ना कि कर दो। उसके बाद है स्क्रूटनी ऑफ पार्टी फाइनेंसेस। पार्टी फाइनेंसेस should be enforced by a third party auditor. The government should amend section 29A of the RPA Government should amend section 29A of RPA to explicitly 29A to explicitly empower the EC to deregister parties. Government should amend section 29A of the RPA to explicitly empower the EC to deregister parties, especially the shell parties operating as tax havens. Shell party. Shell, SHELL, shell parties. I think so it deals with the deregistration of the parties only. Scrutiny is like when you actually आप देखते हो कि पार्टी जो मतलब जो भी फाइनेंसेस हैं वो कहाँ से आए, मतलब बोथ द रेवेन्यू पार्ट ऑफ इट एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ इट, मतलब आप उसको चेक करना, हाँ दैट्स द वर्ड, हाँ इन्विजिलेट करना। तो वो कह रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करे, कोई बाहर आपका पार्टी का बंदा ही करेगा तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर से स्क्रूटनी कर रहा हो, ठीक है। ऑपरेटिंग एज टैक्स हेवन्स, शेल कंपनीज भी तो होती हैं जो सिर्फ है ना, तो उसी से शेल पार्टीज हैं कि सिर्फ टैक्स को टैक्स हेवन की तरह ऑपरेट करिए, इलेक्शंस में कोई पार्टिसिपेशन उनका वो नहीं है, एजेंडा नहीं है। ईसी और ज़्यादा, हाँ, ताकि अगर आपको लगता है कि जैसे शेल पार्टीज हैं तो आप उनको भी रजिस्टर कर दो, क्योंकि अगर वो कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, कोई फ्लाउट नहीं करेंगे रूल, है ना,
और कैंडिडेट्स खड़े भी हो गए, जस्ट डमी कैंडिडेट्स, तो आप उनको डी रजिस्टर कैसे करोगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वो शेल पार्टीज हैं तो उनको आप डी रजिस्टर करो, ये पार हमें ईसी को देनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये भी पेपर 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। पता है सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत? नहीं पता? बेसिकली आरपीए 1951 में ना सारे जो भी आप कह लो कि एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट्स की, है ना, उसके बारे में बताया हुआ है कि कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में, और एक ये बताया हुआ है कि क्या करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, अगर ये है तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ताकि मतलब इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के। तो जो भी प्रोविजंस है वो आरपीए में दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। 1951 दो हैं बेसिकली, बट ये 1951 से डील कर रहे हैं। ओके, देन एक है कि अमेंड सेक्शन 125A ऑफ आरपीए। No, of the RPA sections basically. 125A to enact penalties on those candidates who file false or misleading disclosures. उसके बाद फिर पेपर 2 की एक और न्यूज़ थी, इंटरप्रिटेशन by the Supreme Court of section 123(3) of the RPA। ठीक है, इसमें क्या था, किसी को पता है? ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है यार। हाँ, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का स्कोप बढ़ा दिया है। तो अब जैसे बेसिकली 123(3) में क्या था कि अगर आप रिलीजियस अपील्स करते हो ना, तो आप पहले क्या होता था कि सिर्फ कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, वो नहीं यूज कर सकते थे रिलीजन या मतलब रिलीजियस अपील्स करना। अब ये कि इवन जो इलेक्टर्स हैं जो वोट कर रहे हैं, मतलब यू कैन नॉट मेक एनी अपील टू देम। बेसिकली थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया है, एक मतलब रिलीजियस अपील्स या लैंग्वेज की अपील या कास्ट अपील्स अगर कोई कर रहा है तो वो फिर करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा अंडर दिस आरपीए। ठीक है, तो अब ये लिख लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 123(3) of RPA by SC, by Supreme Court, that religion, race, caste, community or language, that religion, race, caste, community or language would not be allowed to play any role in the electoral process and the election of a candidate would be declared null and void if
these considerations are involved in the campaign. Are invoked in the campaign. अभिराम केस है जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है, अभिराम केस, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अब इसका एनालिसिस करते हैं हम थोड़ा सा कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ सच जजमेंट एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स, ये 2-3 आर्टिकल्स का कल्मिनेशन है, ठीक है, जो आए हैं। सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो शोज मॉरल कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म। Will help to censure hate and divisive campaigns. Will help to censure hate and divisive campaigns. Then you can write that scope of corrupt practices has been expanded. And then you can write another point that it will eventually strengthen the Indian democracy. And then any negatives of this judgment or any issues involved. कोई भी एक पॉइंट तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें कि क्यों इश्यूज हो सकते हैं इस जजमेंट में? कैसे? तो आप कह रहे हो कि जो माइनॉरिटीज के कंसर्न्स हैं वो आप, है ना, हाँ बिल्कुल, ये माइनॉरिटीज के कंसर्न्स नहीं आप उठा पाओगे। अच्छा, सबसे पहले ये पॉइंट होगा कि दैट दीज सोशल आइडेंटिटीज दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज लाइक अकाली दल एंड मुस्लिम लीग, है ना, विच आर एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उनका क्या स्टेटस है अब? एक तरह से वो तो एग्जिस्ट भी नहीं, उनके तो एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सो यू कैन राइट दिस दैट दीज सोशल आइडेंटिटीज have influenced the formation of political parties like the Akali Dal and Muslim League. And then religion, race, caste, etc. have resonated in the electoral campaigns and debates. Religion, race, caste, language, etc. have resonated in the electoral campaigns and debates. कि वो कह रहे हैं कि जो मोबिलाइजेशन हुई है ना, पॉलिटिकली लोगों की, वो बहुत ज़्यादा इन बेसिस पे हुई है और वो बहुत पहले से होती आ रही है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि वो डिविजिव हैं या मतलब वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उल्टा सबके कंसर्न्स, अगर कोई पर्टिकुलर लेट्स से मुस्लिम के हम कंसर्न्स करें तो मुस्लिम्स डेवलप्ड भी तो नहीं है, उनकी जो मतलब उनकी एम्पावरमेंट नहीं है। अगर आप जाके देखोगे सबसे बैकवर्ड वही है। तो अगर हम बता रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम्स की डेवलपमेंट करेंगे तो हम कुछ डिविजन तो नहीं क्रिएट करें ना, हम तो पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं कि हाँ इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई इतनी और हमको इनकी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। रिलीजन, रेस वाला है, religion, caste, race, language, etc. have resonated in the electoral campaigns and debates.
उसके बाद है कि द जजमेंट अप्लाई implies that the identity of the candidates matter more than what they stand or argue for. Judgment implies that the identity of the candidates matter more than what they stand or argue for. ये मतलब जो उनकी आइडेंटिटीज हैं आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मतलब जो उनके इश्यूज हैं उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब अगर ठीक है. और उसके बाद एक जो मैटर मोर देन व्हाट दे स्टैंड और आर्ग्यू फॉर. उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस अपील्स इज नॉट क्लैरिफाइड बाय द कोर्ट. कोर्ट ने ये तो बताया नहीं कि ये रिलीजियस अपील है और ये नॉन रिलीजियस अपील है. उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि कोर्ट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट दैट रिलीजियस अपील्स प्रोड्यूस वायलेंस. कोर्ट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट that religious appeals produce violence. But the RPA and many other provisions in our penal law already regulate hate speeches or speech that produces enmity. तो ये कुछ इश्यूज हैं इस जजमेंट के. तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या बोलोगे आप? लिख लो वे फॉरवर्ड. If this discourse leads to incitement of hatred and violence, then it should be dealt under existing laws. But at the same time, lack of these references will lead to undermining of interests of minority. But at the same time, lack of these references will lead to undermining of interests of minority and marginalized communities. Whose cause of marginalization and discrimination are their social identities. Whose cause of marginalization and discrimination are their social identities.
ठीक है, ये वाला टॉपिक बेसिकली इंटरप्रिटेशन है। एक तो 123(3) की, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स में हम यही बोलेंगे कि एक तरह से अगर कोई डिविजिव कैंपेन कर रहा है या एक तरह से कोई भी कैंडिडेट बेसिकली रिलीजियस अपील्स को या रिलीजन को यूज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। दैट दिस इंटरप्रिटेशन विल एंड दोज प्रैक्टिसेस। बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो कि जो सोशल आइडेंटिटीज हैं या जैसे कि मुस्लिम्स वगैरह, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए वो और ज़्यादा, अगर आप उस चीज़ को भी इन्वोक नहीं कर रहे हो तो एक तरह से आप उनके साथ अनजस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में यही बोल देंगे कि उनको दोनों को हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। ऑलरेडी लॉज हैं, अगर कुछ ऐसा हेटफुल स्पीच या डिविजिव कैंपेन्स होते हैं तो उनके अंडर वी कैन ऑलवेज एक्ट। ठीक है, उसके बाद IR के कुछ टॉपिक्स थे, मतलब इतना तो कुछ है नहीं IR में इस वाले वीक में, बट एक तो इंडिया ने यूरुग्वे के साथ एक कस्टम्स पैक्ट साइन किया था। ठीक है, बट उसका भी अगर आप ये देखो कि यूरुग्वे का ये है कि मर्कोसर का नाम सुना है सबने? मर्कोसर, MERCOSUR, किसी ने भी नहीं सुना हुआ? ओके, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में? अच्छा, ये ग्रुपिंग है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास बिम्स्टेक है या ब्रिक्स है, उस तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की 5 कंट्रीज़ थी इसमें पहले, यूरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ठीक है, अब वेनेजुएला को लास्ट ईयर बाहर निकाल दिया था और कुछ ऑब्जर्वर्स हैं। बेसिकली वही है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है जैसे बाकी ब्रिक्स वगैरह है। तो अब ये थोड़ा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। यस, में कुछ ऐसे बताया हुआ है कि पार्टिसिपेट एसोसिएटेड होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं और एसोसिएटेड मेंबर होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर्स वगैरह होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे हर एक लेट्स से जो भी डिसीजन होगा, तो उनकी रैटिफिकेशन के बिना वो डिसीजन नहीं होगा। अगर वो जब तक उसको वो नहीं येस नहीं करेंगे वो डिसीजन नहीं होगा, या वो उसको वीटो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो बस अपनी जो भी अपना उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्लेस करते हैं, ताकि जो बाकी मेंबर्स हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, वो उसको कंसिडर करें। ओके, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो ऑब्जर्वर्स हैं? हाँ, उनको ऑब्जर्वर्स कहते हैं। इवेंचुअली विद टाइम दे कैन ऑल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ इट। जैसे अभी किसका इंडिया मेंबर बना था? SCO, हाँ, एशियन ऑब्जर्वर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले मेंबर मतलब ऑब्जर्वर था, अब फुल फ्लेश्ड मेंबर बन गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्री के विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट है। ये जैसे ये क्योंकि यूरुग्वे के साथ जो ये हमने कस्टम डील साइन करी है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है कि क्वेश्चन आ जाएगा, बट मर्कोसर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसमें क्या क्या इसके मेंबर्स हैं और क्या क्या वो करते हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, बाकी भी जितने सारे हमारे ग्रुप्स हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, ठीक है, सबके बारे में। उसके बाद उसके बाद इंडिया और कजाकिस्तान ने डील साइन करी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। ठीक है, वो भी जस्ट एक फैक्ट है, not that it is very important. So in case you get any question on the Central Asian countries, like India's association with Central Asian countries, so you can actually quote this that we have been dealing in these so and so pacts. Okay, in case you happen to remember. ठीक है, और उसके बाद फिर हम पेपर 3 पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना एक आर्टिकल आया था सी राजा मोहन का, रीबिल्डिंग फॉरेन पॉलिसी कंसेंसस। ठीक है, उसमें ये बताया था बेसिकली आर्टिकल क्या था कि जैसे ट्रम्प और ओबामा US पे बेस्ड था कि कैसे जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो ओबामा से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उसको उसने इंडिया के साथ डील किया था कि विद चेंजिंग गवर्नमेंट्स शुड द फॉरेन पॉलिसीज ऑल्सो चेंज। लाइक अब जैसे पहले कांग्रेस थी तो उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ और थी, लेट्स से पाकिस्तान के प्रति या USA के विद रिस्पेक्ट टू। अब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है
तो क्या पॉलिसीज भी विद चेंजिंग गवर्नमेंट्स चेंज होनी चाहिए या सेम रहनी चाहिए? अगेन दोनों एस्पेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि सेम रहनी चाहिए तो उसका क्या पॉजिटिव होगा? हाँ, बेसिकली कि आप मतलब एक तरह से दूसरी कंट्री को इंश्योर कर ये बता रहे हो या पूरी दुनिया को ये बता रहे हो कि नॉट विद द चेंजिंग पॉलिसीज, आपकी पॉलिसीज नहीं चेंज होंगी। इट हैज टू बी लाइक फॉर इफ इट इन्वॉल्व्स द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, द पॉलिसीज दे शुड नॉट चेंज। अगर आपकी कंट्री को फायदा हो रहा है तो पॉलिसीज शुड नॉट चेंज अनलेस एंड अंटिल समथिंग वेरी बैड हैपेंस और सम इंसिडेंट हैपेंस, लाइक लेट्स से कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा मुद्दा तो हमेशा से ही था, तो अभी जैसे पठानकोट अटैक हो गया या कुछ ऐसे हो गया तो आपने अपनी टाइज एक तरह से जो भी एसोसिएशंस की बंद कर दी, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, बट एल्स देयर शुड बी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब उसके बाद कंटिन्यूटी ना होने का भी तो कोई पॉइंट होगा। उसका बस हम यही बोलते हैं कि जैसे विथ चेंजिंग टाइम्स है ना, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज होते हैं, तो वी शुड ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। ये नहीं कि हमें कंटिन्यूटी के चक्कर में हम अपने इंटरेस्ट को ही अंडरमाइन करते हैं, ठीक है। अगर आज हमें आपकी हमें कहीं और किसी कंट्री से कुछ बेटर डील मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट्स और नॉट, तो हम उस कंट्री के पास चले जाएंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली, सो या डेफिनेटली, सो विद चेंजिंग टाइम्स, so certain changes are necessary, so we can actually bring in certain changes with the foreign policy as far as foreign policy is concerned, but the broader aspect is the larger interest of the country, the larger interest of the people of the country. Like if you are benefiting economically, then why not change or why not keep it continuous? तो ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि विद चेंज के साथ आपको चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 में तो डीमोनेटाइजेशन ही है न्यूज़ में, है ना। तो इसके बहुत सारे 2 एडिटोरियल्स थे पिछली बार जो अच्छे थे। डीमोनेटाइजेशन के फेलियर सक्सेस के बारे में तो सबने बहुत पढ़ लिया होगा, है ना। तो अब सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये सक्सेस है? हाउ ओके, सो यू नो द पॉइंट्स, है ना, दैट व्हाई इज इट अ सक्सेस। अब हम इसके ना कुछ इश्यूज करते हैं डीमोनेटाइजेशन के, ठीक है। बेसिकली ना 3 हेडिंग्स हैं। this was also an opinion in Indian Express, the post truth demonetization करके था। तो इसमें 3 इफेक्ट्स बताए हैं उसने, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में क्या था? पहले तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स हैं उनको हटा दिया। क्या बोल के हटाया? कि पर्पस तो सॉल्व होता नहीं है, 1000 के नोट या जो भी 500 के नोट्स ट्रांजैक्शन में इतना यूज नहीं होते डेली की, तो ओनली पर्पस दे सर्विस कि दे हेल्प यू टू एग्जैक्टली कि आप ब्लैक मनी की तरह उस पैसे को स्टोर कर सको, है ना। हाँ, तो बट एट द सेम टाइम अगर यही रीजन था देन व्हाई डिड दे इंट्रोड्यूस 2000? सो दैट इज एन इशू, ठीक है। हाई डिनोमिनेशन नोट्स मेनली सर्व टैक्स इवेजन एंड क्राइम। हाई डिनोमिनेशन नोट्स mainly serve tax evasion and crime. Hence should be banned, and hence should be banned. But the introduction of a rupee 2000 note is surprising.
और इकोनॉमिक इशू क्या है कि एन ओवरनाइट आउटलॉ, आपने ओवरनाइट ही आउटलॉ कर दिया नोट्स को, ठीक है, दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इकोनॉमी. एन ओवरनाइट outlawing उसके बाद है 93% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इज इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी. 93% of India's labor force is in informal economy and the cost of such a policy exceeds the likely benefits. 93% of the India's labor force is in informal economy and the cost of such policy exceed the likely benefits. And the costs of such a policy exceed the likely benefits. Likely benefits. ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया not ready with an appropriate amount of substitute currency. Reserve Bank of India not ready with an appropriate amount of substitute currency. Then the other thing which we can cover in administrative issues is the issues with cashless economy. So what are the issues with cashless economy as far as India goes? Okay. But they can always create the awareness, no? So mainly I guess it's more about that they are not illiterate. Yes, definitely they are illiterate. The basic literacy is missing, leave alone financial literacy. Yeah. Lack of infra. The government should also provide the infrastructure, right? So what are the issues is that less than 75 to 80% literate. Then you have poor connectivity, like you said, in rural areas. Okay? The issues with the rural areas. You have poor connectivity, you have lack of infrastructure there. उसके बाद unclear laws about privacy. About privacy. And then you have viable only in a rich economy where most economic exchanges are in the formal sector. Where most of the exchanges are in the formal sector. Then you have political issues. पॉलिटिकल इश्यूज क्या है कि अगर जैसे ये डिस्कोर्स बिल्ड कर दिया गया है, ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि अगर कोई भी डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज करेगा तो वो अनपेट्रियोटिक है और वो करप्शन को प्रमोट कर रहा है, और मतलब ये एक नैरेटिव बिल्ड किया ही हुआ है ना, तो इसलिए अब वो कह रहा है कि ये पॉलिटिकल इशू है कि जब आपने ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया तो उसके बाद जो भी मोबिलाइजेशन है उसके अगेंस्ट, उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि हमें तो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वी हैव टू सपोर्ट इट, सो विल नॉट बी क्रिटिकल ऑफ इट. तो एक तरह से जो भी पॉजिटिव चेंज आना चाहिए वो नहीं आएगा, या जो चेंजेस आने चाहिए या जो भी फेलियर्स हैं या जो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने के रीजंस हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगे एक तरह से. ठीक है, सो बाय टर्निंग क्रिटिसिज्म ऑफ डीमोनेटाइजेशन, turning the criticism of demonetization into an unpatriotic and corrupt act by turning criticism of demonetization into an unpatriotic and corrupt act, the PM has decreased the ability. PM की जगह गवर्नमेंट लिख दो. The government has decreased the ability of corrupt act
the government has decreased the ability of opposition parties and NGOs to lead protests. ये तो हो गए इश्यूज, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है. उसके बाद ना एक और आर्टिकल था कि रीजंस फॉर द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन. ये पुअर इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुई डीमोनेटाइजेशन की, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं. ये जो हाँ अनप्लान्ड था, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि every citizen of the country has like used his or her bank accounts to launder money. जो भी जनधन अकाउंट्स को भी यूज कर लिया है ना, कि every citizen or not every citizen, most of the citizens have given their account for that. उसके बाद जो बैंकर्स थे, ठीक है, they were hands in gloves with the people so that they actually laundered money for them. Even some RBI officials है ना, cooperative banks के officials, ठीक है, political parties were used to launder money, ठीक है. तो वही ये मतलब एक तरह से कुछ reasons है वो तो poor implementation of this. लिखने ये सिंपल ये लिख लो कि poor implementation में कि बैंक officials, RBI officials, cooperative बैंक के officials, citizens and political parties, they have all contributed to the laundering of money. You can say because we didn't have the infra, like है ना, we didn't have, exactly, so that could have been done better. It could have been a better implementation of the whole process. इवन अगर आरबीआई भी पहले बहुत सारी करेंसी छाप लेता, इवन 100 के नोटों की या जो भी है, तो भी शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है ना. तो वो भी calibration wouldn't have been a problem. Yes, that could be. But then they were not aware of the demonetization. Exactly. Better preparation would have definitely led to better implementation. But then you can always say that we can always learn from our mistakes, and you always have to end your answer in a very optimistic way. You can criticize everything, you can criticize everything, but when you end it, when you write way forward, it has to be a very positive thing. You cannot end it in a very negative way. Always be positive about everything happening around, right? उसके बाद ना there was this article about reservation. पढ़े थे किसी ने इंडियन एक्सप्रेस में? तो उसमें ना जैसे आर्टिकल था कि रिलेशनशिप बिटवीन एजिटेशंस फॉर कोटा डिमांड्स एंड द लैक ऑफ जॉब्स. ठीक है, the bottom line of the article was that basically the agitations are not happening because those like let's say the Jats or the Patidars, they want reservation. It's because that they are economically not that well off now. So for that could the reason what could be the reason? Because these the dominant classes, the Jats, the Patidars, they actually earned very much from the agriculture. Okay, so agriculture, when there was a boom in agriculture, they became very prosperous because of that. Now since agriculture is in turmoil, okay, because of let's say any number of reasons, because of the climate change, because of the increasing pest attacks, because of the drought, because of so many reasons, the productivity has not, or you can say it has stagnated. So because of that, the agriculture has not remained such a profitable venture. And moreover, the jobs which are there in the cities, industries are not providing enough jobs, है ना? So it is basically economic reason. Okay, the lack of the jobs which are actually pushing these Patidars towards reservation, and not that they have been deprived
due to some reasons, like there has been no historical wrongs which have been done to, let's say, SCs or STs, you know. So that is not the reason. The reason is that there is lack of jobs. ठीक है. अच्छा, उसके बाद the other thing which is important is that whether we can actually introduce whether the reservation will solve the problem or not. Do you think it will solve the problem? Or the fact that we can actually provide jobs to them, skill them, provide jobs to them, make agriculture a more profitable venture, that will solve the problem, that will stop the migration, and that will solve the problem. Okay? So that was just an article I'm discussing. You don't need to actually write it. Exactly. Exactly. So it will also create a very bad precedent for the society to follow, that you can always, you know, go for violence and your demands will be fulfilled. So that way also. Yeah. So now we come to science and tech. साइंस एंड टेक में एक तो नई ऑर्गन डिस्कवर हुई है, मेसेंट्री. क्या होता है मेसेंट्री? ओके, सो व्हाट इज मेसेंट्री एग्जैक्टली इज, इट इज अ फोल्ड ऑफ अ पेरिटोनियम. ठीक है, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है. पेरिटोनियम क्या होता है? एक तरह से ना एक कवरिंग है जो सारी आपकी ऑर्गन्स को कवर करती है एक तरह से. ठीक है, it's a serous membrane, it's a membrane तो समझते हो ना सब, कि एक तरह से कवरिंग है ऑर्गन्स की. ठीक है, तो उसका फोल्ड था, उसको हम कहते थे मेसेंट्री. अब वो मेसेंट्री क्या है कि आपकी जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स है, अब्डोमिनल ऑर्गन्स में क्या आता है? लिवर, स्प्लीन, है ना. उनको जो पोस्टीरियर वॉल है ना, पोस्टीरियर वॉल होती है आपकी पीछे वाली वॉल, बैक. ठीक है, उन ऑर्गन्स को पोस्टीरियर वॉल के साथ कनेक्ट करता था पेरिटोनियम. ठीक है, मतलब एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम मेसेंट्री कहते थे. अब ये था तो हमेशा से ही, है ना. तो इसको ऑर्गन क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि ये फ्रैगमेंटेड है और कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गन नहीं मानते हैं. बट अब उन्होंने मतलब अब जो भी रिसर्च हुई तो दे केम टू नो दैट इट इज नॉट दैट कंटिन्यूस एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, हेंस दे हैव डिक्लेयर्ड इट टू बी एन ऑर्गन. सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स व्हिच विल वी गेट आउट ऑफ डिक्लेयरिंग इट? जैसे कोई भी ऑर्गन होता है ना, तो उस पर रिसर्च फिर एक ऑर्गन के तहत रिसर्च होगा. तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम उसको ऑर्गन डिक्लेयर कर देंगे तो जो बाकी जो डिजीजेस हैं जो या जो अब तक क्योर नहीं हो पाए हैं, उनको एक तरह से हेल्प मिलेगी उनकी रिसर्च में, क्योंकि हम एक तरह से डिफरेंट ऑर्गन की तरह उसको ट्रीट करेंगे. हाँ एग्जैक्टली, तो उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे अब. ठीक है, तो ये लिखना है, मेसेंट्री इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. ये थोड़ा प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल है. 79th ऑर्गन है ये हमारी बॉडी की जो डिस्कवर हुई है. ठीक है, इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम which connects या which attaches the abdominal organs. abdominal organs में क्या आता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लीन वगैरह वगैरह. ठीक है, which connects the abdominal organs to the posterior wall of the abdomen. Posterior wall of the abdomen. No, peritoneum is a membrane that covers the organs. It can cover small intestine, it can cover liver, it can cover spleen. It's just a membrane. You understand the covering? Okay, it's a covering. So what happens is that covering, when it is like continuous, it's like a fold and it attaches to the posterior wall of the abdomen. So when that happens, it is known as mesentery. This attachment.
to the organs, like different organs are there, all organs, so they are covered by this peritoneum. So that peritoneum actually helps to connect those organs with the posterior wall of the abdomen. So it's a fold of a peritoneum. The more important thing is what you have to remember is it's a fold of a peritoneum. And why wasn't it considered an organ before? Because it was considered to be fragmented. Okay, so now they found out that it's more continuous and more complex, and hence it has been declared as an organ. Okay? So now we can actually further scientific studies and carry out researches which will actually help in knowing certain diseases. Okay? इसके बाद बस इसमें इतना ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा. इसके बाद नासा ने 2 मिशंस लॉन्च किए हैं, मतलब कौन सा लॉन्च नहीं किए, सॉरी, सिलेक्ट किए. अभी तो 2021 में होंगे. 2 हैं, एक है मिशन लूसी और एक है साइकी. पढ़ा नहीं हुआ इसके बारे में, या तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते है ना? नहीं पढ़ते ना बिल्कुल भी. ये तो इम्पोर्टेंट है यार, ये तो पता होना चाहिए था, काफ़ी था ये तो न्यूज़ में. अच्छा, तो अब 2 मिशंस हैं, ल्यूसी एंड साइकी. बेसिकली डील अब एक तरह से ल्यूसी जो मिशन होगा वो जाएगा जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पे. TROJAN, ट्रोजन के बारे में तो सुना होगा सबने. हाँ, पता है सबको. ट्रॉय देखिए, नहीं देखी. बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी है कि आप ये लगा लो इट्स मोर ऑफ एन इंट्रूडर. जैसे उन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया था तो उन्होंने बोला था ये तो बहुत ही मतलब सही सा बना के कि उनको एक तरह से गिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, बट एक्चुअली में उस घोड़े के अंदर देवर इंट्रूडर्स, तो इसलिए उसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं कि आप एक तरह से इंट्रूड कर रहे हो, या एक तरह से क्या कहेंगे उसको, और बेटर वर्ड कैसे बोल सकते हैं, स्पाई कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, इनफिल्ट्रेट, ऐसा कुछ. क्योंकि देखने में तो लगता है कि बहुत ही सुंदर हॉर्स है बट अंदर देयर आर पीपल. अच्छा, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के बारे में पता है? ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है कि अब हमारे जितनी भी प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, मरकरी और सैटर्न को छोड़ के सब में ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है. अब ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या है कि बेसिकली एस्टेरॉइड्स तो पता ही है ना कि छोटी छोटी जो बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज वही हैं. अब वो जुपिटर के एक सेकेंड मैं आपको बना के दिखाती हूँ. एक किसी को लैग्रांजियन पॉइंट्स पता है? ज्योग्राफी हो गई है कवर, तो मतलब ये सोलर सिस्टम, यूनिवर्स वगैरह हो गया कवर? नहीं हुआ? थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, बाकी खुद पढ़ लेना जब पढ़ाओ, जब भी पढ़ेंगे. जैसे ना लैग्रांजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे ये सन है सपोज, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये सन है, ये अर्थ है. अब दोनों की अपनी ग्रेविटी है ना, दोनों की अपनी ग्रेविटी है. लेट्स से कोई बॉडी यहाँ पे है तो उसको सन भी पुल कर रहा है और उसको अर्थ भी पुल कर रहा है अपनी तरफ. एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगी, तो उसको कहते हैं लैग्रांजियन पॉइंट्स, ठीक है, लैग्रांजियन पॉइंट्स. अब यहाँ पे जो ये बैलेंस होता है ना, तो ये इसके अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर देता है, ठीक है. तो यहीं पे हम सैटेलाइट्स भी इन्हीं पॉइंट्स पे डालते हैं, लैग्रांजियन पॉइंट्स पे, ताकि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर दें, ठीक है. अब हमारे पास ना एक L1 लैग्रांजियन पॉइंट होता है, एक L2 लैग्रांजियन पॉइंट होता है और एक L3 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे L4 है और L5 है. तो लेट्स से अब ये जुपिटर है, ठीक है. अब जुपिटर के यहाँ पे ना कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, इनको हम कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ठीक है, L4 और L5 पे. वहाँ पे हम मिशन ल्यूसी को भेज रहे हैं, विच इज अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट. अब वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, एक तरह से रिसर्च टू कैरी आउट कि कैसे यूनिवर्स बना था. तो हमें जो इंसाइट्स हैं
कि कैसे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी या कैसे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी, स्पेशली आउटर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो एस्टेरॉइड्स, जो बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स है ना मार्स और जुपिटर के बीच में, जो जुपिटर ऑनवर्ड्स होते हैं ना, वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ल्यूसी हमें बताएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ और यहाँ, मतलब जुपिटर के साथ ही ऑर्बिट कर रहे हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स उसके आगे हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स उसके पीछे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। और उसके बाद जो साइकी मिशन है, साइकी मिशन एक एस्टेरॉइड है साइकी 16, जो वही मार्स और जुपिटर के बीच में, साइकी 16 इज एन एस्टेरॉइड। अब वो बेसिकली जिसमें आयरन और निकल का बना हुआ है, मेटालिक एस्टेरॉइड है, ठीक है। आयरन और निकल का और क्या बना हुआ है हमारे अर्थ में? हाँ, कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। Now, why the Psyche 16 is important or an area of interest is that it is made up of iron and nickel, similar to the Earth's core. तो पहले अब Psyche 16 के बारे में ये कहते हैं कि वो भी एक प्लैनेट ही था ऑफ द साइज ऑफ मार्स, बट उसकी जो बाहर वाली लेयर्स थी ना, लेट्स से जो मेंटल था, है ना, या जो हमारा क्रस्ट था, वो वाली लेयर्स ड्यू टू वायलेंट एक्सप्लोजन्स उड़ गई, ठीक है, तो कोर ही रह गया। तो अब नासा बिलीव्स कि जब हम वहां पे जाके स्टडी करेंगे तो हमें बेटर मिलेगा कि कैसे लेयरिंग ऑफ प्लैनेट्स होती हैं, कैसे लेयर्स बनती हैं। सो विल कम टू नो ऑफ दैट। सो दैट इज व्हाई दिस साइकी मिशन इज इम्पोर्टेंट। दैट इज ऑन साइकी 16. ल्यूसी इज गोइंग ऑन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑफ जुपिटर। क्यों अर्थ की तरफ क्यों होंगे? बैलेंस होगा जहाँ पे दोनों। हाँ, प्रिसाइसली, डेफिनेटली, हाँ। और ल्यूसी के बारे में सुना? ल्यूसी फॉसिल भी होता है एक, उसी से नाम आया है। ल्यूसी फॉसिल डिस्कवर हुआ था बैक इन 70s, ठीक है, पता नहीं कहाँ हुआ था, मुझे ये नहीं याद, अफ्रीका में कहीं हुआ था। तो अर्लीस्ट फॉसिल माना जाता है, अर्लीस्ट कंप्लीट फॉसिल। तो अब उसको ये बोलते हैं कि उसको स्टडी करके हमें लेट्स से कि ह्यूमन के बारे में काफी पता चला कि अर्ली मैन कैसे होते हैं। दैट इज ऑल्सो अगेन कि अगर हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेंगे तो हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, हेंस द नेम ल्यूसी। जस्ट अ बिट ऑफ ट्रिविया। एक नीति आयोग, गवर्नमेंट ने बोला है नीति आयोग को टू सी द फीजिबिलिटी ऑफ हाइपरलूप। हाइपरलूप सुना हुआ है? ओके, इलॉन मस्क का नाम सुने? टेस्ला, उन्हीं का तो है हाइपरलूप, जो सुपर फास्ट वो है, पोडियम कैप्सूल टाइप, इसमें सुपर फास्ट 700 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि नीति आयोग को टू स्टडी द फीसिबिलिटी ऑफ द हाइपरलूप। तो अब बेसिकली वो तो चलो एक न्यूज है, बट हाइपरलूप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक का वो है। तो हाइपरलूप के बारे में लिख लो एक लाइन, दैट इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम where a pod-like vehicle, POD, pod, is propelled in low pressure at very high speeds. The speeds are as high as 700 miles per hour or 1000 kilometers per hour approximately. So जो जर्नीज जिनमें अभी 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेट्स से अगर वंस इट इज ऑपरेशनल ओनली 30 मिनट्स यू विल टेक। तो चलो ये तो इसमें, और तो क्या ये लो प्रेशर में ऑपरेट करता है, सिमिलर टू दैट ऑफ एयरक्राफ्ट वगैरह, और स्पीड्स भी बहुत हाई रीच हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे हम अभी जैसे नीति आयोग को मिला है, तो क्या व्हाट डू यू थिंक दैट इज इट फीजिबल फॉर इंडिया? दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस और नो में आंसर दो, दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं। यस, इट इज फीजिबल, व्हाई? कुछ तो पॉइंट्स बताओ यार। ओके, और
ये तो आपने वो बता दिया, रिजल्ट बता दिया, फीजिबिलिटी नहीं बताई। फीजिबल है वो तो चलो, वी कैन ऑलवेज, हाँ मतलब आप कह सकते हो कि नो में आ गए ना, येस में बताओ पहले पॉइंट्स। नो में आ गए, नो में आ गए ना वो कि कॉस्ट ज़्यादा है, इंडिया में खाने के लाले हैं आप, मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, वो तो नो में आ गई। येस में बताओ पहले। एक भी पॉइंट नहीं आ रहा येस में। Yeah, so try saying it because you know you'll get these kind of questions in mains जहाँ पे you are clueless and you have to retrieve it from the back of the mind or make things up there and there only. So let's just discuss that. So what were you saying? Basically, yeah, what we can say is that as such, we don't have that kind of infrastructure in our country, right? So why not start with this only? Why not, when we have to build an infrastructure, why not start with the best only, है ना? Why not spend one time only, right? And then other important point is yes, me that like you were saying, we don't have technology, but let's just say, yeah, we have technology, we have good human resources, we have financial resources, we have large population, we have huge density of population, so we can always go in such transportation systems which transport really fast. क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को केटर कर सकते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सो व्हाई नॉट, है ना? उस तरह से डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें मतलब आप लगा लो कि ज़्यादा जगह तो मिलेगी नहीं, तो हमें उसी जगह पे अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। So yeah. Exactly. Why not be a little proactive in such approaches? So that can be a positive. That can why we need it, and why do not we need it is again the point. Like we gave in the Mars Wala mission, that India doesn't even can provide food security to all its people. Then why waste money on this? We have other issues at hand. We have health issues at hand. We have education issues at hand. We have skills issue at hand. So why not actually deal with those first and then come back to such technologies? Okay. Exactly. Why not? Exactly. Yeah. Exactly. So yeah, positives can be there and negatives can also be there. So you have to develop your capacities of brain to think both ways. Till let's say 5 minutes back, you couldn't even think of one positive. Now you can. You have to have both sides. Yeah, why not? Why not? Why not? Why not? You can, right? And then have you heard of M Parivahan? That's a mobile app. Okay. Basically, you have two repositories, Vahan and Sarthi. We have two repositories, data repositories, Vahan and Sarthi. Vahan is VAHAN. वाहन इज फॉर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन। जितने भी आपके व्हीकल्स रजिस्टर होंगे ना, उसकी ऑनलाइन रेपोजिटरी बना दी है, ठीक है। और जो साथी है वो डीएल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए। तो जो एम परिवाहन है ना, ये बेसिकली एक ऐप है जो लिंक करेगा इन रेपोजिटरीज के साथ, ठीक है, इन डाटा रेपोजिटरीज के साथ। तो आप जैसे लेट्स से एम परिवाहन में कोई भी व्हीकल का नंबर डालोगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन, ओनर, सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक तरह से वी कैन से अ स्टेप टुवर्ड्स ई गवर्नेंस, और थोड़ा प्री स्पेसिफिक है कि एम परिवाहन के, सो इट इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक ऐप, ठीक है। और एक वो भी न्यूज़ थी हरियाणा की, सेक्स रेशियो काफ़ी बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 900 हो गई है, ठीक है।
एक ना हिंदू में आया था GPCR, तो फिर आपने लोगों ने तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा टेक्निकल है, मैंने वही बोलना था, वो आप छोड़ सकते हो, मतलब इतनी टेक्निकल न्यूज़, क्योंकि पिछली क्लास में कोई पूछ रहा था, सो यू कैन एक्चुअली लीव दैट, दैट्स लाइक वेरी टेक्निकल, मतलब लेट्स से डॉक्टर्स को भी ना समझ आए इतना टेक्निकल, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल। और कोई न्यूज़ है जो आप नेचर जर्नल की बात कर रहे हो? अच्छा, मतलब वो तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज का वो आप बता रहे हो कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये मेंस में कहीं कोट कर सकते हो, प्री के विद रिस्पेक्ट तो मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, भारत नेट तो पुराना है, हाँ हाँ पुराना, नहीं वो पुराना है, वो इस बार का नहीं है। और एक एक आर्टिकल था जो थोड़ा चलो डिस्कस ही कर लेते हैं, वो था कि अभी आर्मी चीफ नया आया ना हमारा, तो वो आर्टिकल ये था कि व्हाट आर द चैलेंजेस इट फेसेस, लाइक द व्हाट आर द चैलेंजेस आर्मी फेसेस, लेट्स पुट इट दैट वे, वो तो चलो उनका थोड़ा कॉन्टेक्चुअल सा आर्टिकल था। सो व्हाट आर द चैलेंजेस आर आर्मी फेसेस अकॉर्डिंग टू यू? अभी तो वो BSF का भी हो गया कल इशू, है ना, करप्शन वाला। जैसे ना इसमें मैं बोल देती हूँ एक बार, ठीक है, अगर लिखने हैं तो लिख लेते हैं, नहीं तो ओके चलो सुन लो फिर, 5 मिनट 2 मिनट सुन लो बस। आर्मी के चैलेंजेस, एक तो है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कॉन्फ्रंटेशनली रहे हैं, तो अब उसमें एक चीज़ है कि हम ना कन्वेंशनल वॉर के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं कि फुल फ्लेश्ड वॉर होगा बॉर्डर पे, बट अब थोड़े से नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स भी आ रही हैं, तो एक तरह से तो ये चैलेंज है कि हमें नॉन कन्वेंशनल वॉर्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसके लिए उतना ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक और जो चैलेंज है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा ऑपोजिट होते हैं, पॉलिटिशियंस कुछ कह रहे होते हैं, मिलिट्री चीफ्स कुछ कह रहे होते हैं, तो उनको हार्मोनाइज करने की जरूरत है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हार्मोनाइज हो जाएं। उसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड लिंकेजेस, जैसे चाइना वाली साइड तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, हमारी जबकि उनकी टेरेन भी इतनी डिफिकल्ट है, बट हमारी वाली साइड इतनी डेवलप नहीं है, तभी आ जाते हैं वो हमेशा और मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद है कि एक तरह से फाइनेंशियल एलोकेशंस बढ़ा दो आर्मी को, जो भी जा रही हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद DRD और DPSUs हैं जो कि हमारी वेपन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इन्हांस कर दो, उनको थोड़ा सा उनको पैसे दो, उनको पर्सोनल दो, उनको रिसर्च वगैरह करने दो, ताकि हमारे जो वेपन की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी कंट्री में ही फुलफिल हो जाए, हमें बाहर ना जाना पड़े। और एक और पॉइंट है कि जो डील्स बाहर होती हैं, है ना, लेट्स से उनको उनमें भी डिले ना आए, ठीक है, उनमें करप्शन आए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड, चलो ये तो चॉपर वाली डील थी, अदरवाइज जो भी डील्स हुई है ना, उनको एक तो डिले ना हो और एक तरह से जो भी करप्शन वगैरह वाले हैं वी शुड एक्चुअली इंश्योर कि उनमें करप्शन वगैरह ना हो, ट्रांसपेरेंसी आए उन डील्स में, ठीक है। और यही है कि और बाकी हम मतलब टेक्नोलॉजी के पर्सोनल टेक्नोलॉजी में थोड़ा इन्हांस करो, आर्मी को बेटर वेपन्स दो, और वो वेपन्स मतलब विद टाइम चेंज होते रहने चाहिए ताकि वो थोड़ी वो ना हो जाए, बैकवर्ड ना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं।